those aspirants who will appear in CAPFSC 2023 interview. If you have committed any mistake, either in your filling your DAF or in any part, even while you are actually appearing in your actual interview, if you commit any mistake, if anything wrong happens, accept sincerely. Always remember, they said na, every person is one time or other time committing mistake. Some people are knowingly committing, some people are unknowingly. If you are going to be a commander, if you are going to be a leader, you should have courage to accept certain things which is wrong from your side. Imagine in a situation when you are a commander, many people have faith in you. They have put all effort under your command. Many people's life is on your decision at that time. Accept honestly if anything wrong happens. Sometimes what happens? Let us take example. You are a commander, you are a company commander, you are leading the troop, and you are just a newcomer. You came out from academy, you completed your basic training, but you are having less experience on actual in ground. Some inspector, some sub inspector, some head constable may have faced the ground reality of that particular area, and he is giving some suggestions to you. At that time, don't say, yeah, I am your commander, I will do what is appropriate. No, take him suggestions from him or her, but that should not be a blindly. Yes, if the time permits, you have to discuss, you have to take in confidence with that person also, and your experience, your knowledge, whatever you have learned, that is main characteristics of a leader. Many times people are having blind faith in you. At that time, if certain things wrong went, something wrong happens, you should accept sincerely. That will not only save life, energy, effort of other people's and your group, but that may also give you respect. So आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने वाले हो, तो लॉट ऑफ पीपल जो कैंडिडेट्स होते हैं डीएफ में मिस्टेक्स करते हैं फील करने वक्त. एवरी पर्सन इज हैविंग लिटिल लेस इंफॉर्मेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड. नो वन इज हैविंग परफेक्ट इंफॉर्मेशन. परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज यूटोपियन कंसेप्ट. वो जो कहते हैं ना कि एक इकोनॉमिक मैन जो होता है, वो अपने सारे डिसीजन जो होता है वो परफेक्टली लेता है. लोग इन होमो इकोनॉमिकस उसे कहते हैं. तो होमो इकोनॉमिकस जो है वो एक तरह से यूरोपियन कंसेप्ट है, क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन सिमेट्री प्रॉपर नहीं होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता. समथिंग यू विल मिस. सर्टेन टाइम आपको इतने कम टाइम मिलते हैं कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हो. लेट अस टेक कि आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, यू आर देयर इन इंटरव्यू बोर्ड. Do you have enough time to process all the aspects of information? No. Do you have any guidance system there? No. Whatever question is asked from you, you have to reply. Sometime आप रिप्लाई करते हो, आपका जो आप देखते हो बोर्ड मेंबर या जो भी चेयरपर्सन चेयरमैन है उनके तरफ देखते हो, आपको पता ही नहीं चलता ना कि एक्चुअल में मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. आप एक्सप्रेशन उनके, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ गलत बोला तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें डायरेक्टली पिन पॉइंट कर देते हैं कि यस हेयर यू आर रॉन्ग, या जो भी ये सही नहीं है ये सही है. समटाइम बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो बता देते हैं, समटाइम वो बोलते नहीं हैं, वो जो आप बोल रहे हो उसको सुन रहे हैं. और कभी कभी ये है कि आपको फर्दर वो क्वेश्चन पूछते हैं, फर्दर क्वेश्चन क्यूरी आपसे ये उसकी कंटिन्यूटी में सेम क्वेश्चन के कंटिन्यूटी में करते हैं, और समटाइम क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपके जो भी क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, कुछ ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो जहां आपने कोई भी मिस्टेक किया है
तो यदि पूछा जाता है तो आप ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो। ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है बहुत सारे कंसेप्ट, और जब कंसेप्ट नहीं पता हो तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, तो एक वहाँ एज ए टीचर आए थे। मतलब उस कॉलेज के सारे टीचर्स रिनॉन्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एज ए गाइडेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बुलाते थे। तो कुछ एक दो कंसेप्ट था, तो हम लोगों मुझे पता था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि ये वाला कंसेप्ट सर से पूछो। उन्हें एक्चुअल में पता नहीं था, लेकिन जबरदस्ती ये है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप एक टीचर होते हो, जब आप एक मेंटर होते हो, या कुछ ऐसे एक पर्सन होते हो, मिनिमम आप उस लेवल पर लगता है पहुंच गए हैं, तो ऐसा नहीं, आपसे गलती नहीं होती है, हर से होती है। आई माइट सेल्फ एज ए मेंटोर, मैं लंबे समय से आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें परफेक्टली ये कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें लर्न करता हूँ, लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स के ओपिनियन लेता हूँ। यही एक कंटिन्यूटी का तरीका है। सब आप आज के डेट में हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, तो दूसरे का भी ओपिनियन मायने रखता है। आपने हर चीज सही नहीं करा हुआ है। किसी का जैसे डीएफ फील करने में कुछ का क्या होता कि सपोज लैंग्वेज कॉलम में, मैं एक चीज बताता हूँ कि लैंग्वेज कॉलम में वन थर्ड कैंडिडेट्स का कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। कहीं कुछ और, आप हॉबीज में कुछ लिखना एक्चुअल में और चाहिए था, आपने कुछ और लिखा, टू मच एम्बिग्यूटी आपने लिख दिया है, छोड़ दिया है। अब जैसे सिंपली आपने लिखा रीडिंग बुक्स, अब भाई ई बुक्स, यदि जो बुक्स नहीं पढ़ते या जो भी ये है, तो आप सिलेक्शन लिए हो तो इसका मतलब है बुक्स। अब उसमें स्पेसिफिक कुछ टाइप्स के चीजें हैं, या और बहुत सारे जगह लिखना कहीं कुछ और चीजें था, आपने लिख कुछ और दिया। टाइम क्या होता है ना कि वो मिस्टेक्स हो जाता है, हम उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, फाइनल जब ये फील कर देते हैं तब बहुत बार क्या होता है, हम खुद खुद कुछ लिखते हैं, लिखने के क्रम में हमें वो फ्लो होता है, एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में हम लिखते जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता है। लेकिन हम कभी कभी खुद से जो लिखे हैं, कुछ वर्क किए हैं, उसको देखते हैं, या जो सामने वाले को देखते हैं, देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं खुद लिखा, तो स्टूडेंट उसको ये कि सर हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, उसको इम्प्रूव के लिए लॉट ऑफ टाइम आप टेस्ट लिखते हो, कुछ और चीजों को करते हो, तो क्या होता है, मिस्टेक्स आप जो करते हो उस फ्लो में करते हो, वो विद इन लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, उसमें करते हो, आपके पास रीचेक करने का टाइम नहीं होता। वो मिस्टेक्स सामने वाले ने देखा, उस मिस्टेक को आपको बताया। तो लॉट ऑफ टाइम सो इंटरव्यू बोर्ड में बहुत बार ये होता है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि सोचते हैं, नहीं चलो ये पता उनको नहीं चलेगा। एक चीज ध्यान रखो कि आपके पास जो भी है 5 मेंबर्स हैं, 4 5 मेंबर्स आपके पास होते हैं, और उस 4 5 मेंबर्स में से आप ये देखोगे कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी एक आध है अपने वो मूड में है, अपना वो कुछ काम और देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ जो है वो आपको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके एक एक चीज को, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, पोस्चर, सीटिंग, जो किस तरीके से हो। आई माई सेल्फ रिमेम्बर कि इनफैक्ट एक बोर्ड ने स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट किया कि मतलब एज ए आप असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हो, तो थोड़ा सा उस ढंग का ये होना चाहिए, फील होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर पर्सन परफेक्ट है, आप मिस्टेक्स करते हो, आपसे मिस्टेक्स होता है। तो किसी भी एस्पेक्ट्स में आपसे मिस्टेक्स हुए हैं, किसी भी डायमेंशन में, देखो डीएएफ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डीएएफ आपका मेन डॉक्यूमेंट है, वो एक ऐसा रिफरेंस पॉइंट है। उस रिफरेंस पॉइंट से ही आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन पूछना हो और ये, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जा सकता है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इनफैक्ट आपके डीएफ ना देखा जाए फिर भी आपसे क्वेश्चन, हाँ जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जैसे ही बोलते हो, वो न्यू ओपन ऑप्शन देता है, न्यू गेटवे ओपन करता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने कुछ बोला, अब विदाउट आप डीएफ के बोल रहे हो, सपोज आपने, आप तो डीएफ नहीं लिए हो, आप अपना इंट्रोडक्शन लिए हुए, उस इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चंस तैयार होते हैं। जो बोर्ड मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, तो जो बोर्ड के हेड हैं वो आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि ये आपके डीएफ वो उन्होंने देखा भी नहीं है और वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बीच में कुछ
टाइम क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद वो देखते हैं अच्छा इसके डीएफ में क्या है, तो ये इसका रिप्लाई है जो क्या उसके आधार पे है। तो लॉट ऑफ टाइम होता है, हमसे मिस्टेक होते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी एस्पेक्ट में, या आपने डीएफ फिल किया 23 में, आप इंटरव्यू दोगे 24 में, तब तक लॉट ऑफ थिंग्स हैज चेंज्ड। वो कहते हैं ना, हेराक्लिटस का एक स्टेटमेंट है, यू यू कैन नोट अ स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो जो टाइम में आपने डीएफ फिल किया था वो टाइम तो बीत चुका है, वो तो पिछले साल हो चुका है। लेकिन इस साल में तब भी आप एज ए पर्सन इवॉल्व हो रहे हो, आप एक लिविंग बीइंग हो, आप डॉक्यूमेंट नहीं हो, आप एक पर्सन हो। सो मच थिंग्स मे हैव चेंज्ड इन योर लाइफ। तो उस चेंजेस के अनुसार अपने को यदि कुछ चीजें आज लगता है कि हमने जो उस टाइम में किया वो मिस्टेक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई एग्जाम दिए, कुछ ऐसी चीजें, वो इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाता है। डीएफ में एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, किसी में हमारा कुछ छूट गया, किसी में हमने ये कर दिया, हॉबी में है कुछ लिखना हमें और था, कुछ और चीजें बाई मिस्टेक हो गया। तो एक्सेप्ट करो, कहीं भी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम नहीं है। हम गलती कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करो, जैसे कोई भी हो, टीम ही होता है या जो भी होता है, तो गलतियां होती है, तो उस गलती से आपको लर्न करना चाहिए। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन। हम एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, यस, नो डाउट। ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग सेंटर में हमें इसी वजह से सिखाया जाता है कि जब रियल सिचुएशन आए तो आप मिनिमम मिस्टेक करो। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्शन में चले जाओगे, परफेक्शन में कभी नहीं जाओगे। कंटिन्यू आप वर्क करते हो, आप ग्रेजुअली लर्न करते हो, कुछ एरर आपसे होता है और आप उससे लर्न करते हो, और वही आपको वो लर्निंग देता है। तो भी एक आप एज ए कमांडर बनने जा रहे हो, आप उस फोर्स में, जिस भी फोर्स में आप जाओगे, एंट्री करने वाले हो, एंट्री के अभी गेट के अंदर नहीं पहुंचे हो, अभी आप प्रोसेस से गुजर रहे हो। जब यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ऑल कंपोनेंट्स के मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, तब आप सिलेक्शन होगे। तो एक तरह से क्या है, ये वो गेट है जहां आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है। आपने रिटेन में अच्छा किया, फिजिकल मेडिकल पास हो, तब जाकर के आप जा रहे हो। लॉट ऑफ टाइम क्या होता ना कि कोई कैंडिडेट सोचता नहीं कुछ मिस्टेक्स हो गया उसको हम हाइड कर ले, नहीं, ऐसी चीजें कुछ है तो एक्सेप्ट करो। बहुत बार आपने, मैं मानता हूं कि जैसे देखो मूवीज वगैरह होते हैं, मूवीज यहाँ नहीं चल रहा है, जैसे 12th फेल आप लोगों ने देखा होगा, जो भी है उसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड में उस ढंग से नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में आपको निकालते हैं कि वहाँ पहले निकाल दिए फिर उसको बाद बुला रहे हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उस बिल्डिंग में जाते हो तो ये मानो कि जो भी उस साइड बैठे हुए हैं टेबल के, वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आपकी जितनी उम्र हुई है उससे ज्यादा उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो हम कोई भी चीज पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव अपने साइड से बताना है, जो हमारा स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को बताना है। लेकिन कुछ हमसे यदि गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हुई है, तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो। वाइल कम्युनिकेटिंग भी आपको यदि रियलाइज हो जाता है कि यस हेयर आई एम रॉन्ग, तो एक्सेप्ट करो। बहुत बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, तो पोलाइटली आप ये बोल सकते हो कि इन माई ओपिनियन आई थिंक दिस इज। तो ये अब हर फैक्ट्स में तो यही चीज नहीं बोलोगे, लेकिन जहां पॉसिबल होता है आप लिवरेज ले सकते हो कि इन माय ओपिनियन आई थिंक इट इज राइट, बट आई एम नॉट, आई कैन नॉट से विद 100% कन्विक्शन, ठीक है। लेकिन आप ओपिनियन अपना ये रख सकते हो, लेकिन ब्लैंकली आप ये नहीं कर सकते हो नहीं मैं ही सही हूँ, ये नहीं होता है। जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो सीजनड पर्सन है, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, डिफेंस फोर्स में वो उन्होंने वर्क किया हुआ हो, तो आपसे हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। तो कोई भी चीज़ मिस्टेक्स होता है तो एक्सेप्ट करो। लर्निंग एटीट्यूड आपको दिखाना है, ये नहीं कि हम पास्ट में कुछ हो गया तो हम उसी पे पड़े हुए हैं, नहीं। हमें फ्यूचरिस्टिक होना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना है। हमें शो करना है कि यस जो मिस्टेक्स हुए हैं उससे हमने लर्न किए हैं, लाइफ में लर्निंग। अब जैसे किसी का सपोज करो मार्क्स कम आए, सेकेंड डिवीजन आप हो गए, तो उसको ढकने की कोशिश नहीं करो कि ये हो गया, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिया, ये। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। वो कहते हैं ना, जैसे अभी जो चंद्रयान
2 जब मिशन लॉन्च हो रहा था, तो लॉन्च हुआ था, उसके बाद जब वो लैंड करना था, तो फॉर्चुनेटली मैं उस समय बैंगलोर में ही था, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स उसको लैंडिंग को देख रहे थे। लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा रॉन्ग गया। तो उसी समय बहुत सारे न्यूज़ में देखोगे कि वो एपीजे अब्दुल कलाम का वो स्टेटमेंट, कि जब अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब 1980 के ड्यूरेशन में, लेट 1970 के ड्यूरेशन में जब हम लोग वर्क कर रहे थे एसएलवी पे, ठीक है, तो जब वो इन स्पाइट ऑफ 10+ years, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट पर्सनल वर्क, और वो फाइनल मोमेंट पे रॉन्ग चला गया। तो कलाम जी कहते हैं कि आई वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, तो हमारे जो हेड थे, जो पैटर्न थे, सतीश धवन, उन्होंने कहा कि ये जो एक तरह से मिस्टेक्स हुए हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। कलाम जी ने वो चीज़ रियलाइज़ किया, और जब सक्सेस फिर हुआ मिशन, तब उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट दिया। तो हमेशा एक लीडर की ये पहचान होती है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो एक्सेप्ट करें, हम्बली एक्सेप्ट करें, और यदि कुछ क्रेडिट देना है, तो दूसरे को दो। एन नंबर ऑफ पर्सन्स का आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारे पीपल हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। तो जहाँ क्रेडिट देना है तो दूसरों को दो, जहाँ मिस्टेक्स है अपने ऊपर ये लो। जो भी, जिसको भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, कुछ और चीजें हैं, किसी को लगता है कि हम जुड़ सकते हैं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप इंटरव्यू गाइडेंस या कोई भी प्रिपरेशन के असिस्टेंट कमांडेंट के संबंध में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।